First, we'll understand Sensex today. This word Sensex would be used in topics like portfolio and derivatives. Okay. Or Nifty. Have you heard Sensex and Nifty? What exactly is Sensex? How it is calculated? That you know? That you don't know. In the newspaper, it is written in the morning newspaper that today BSE Sensex is 28,120 points. So what is that 28,120 points? Points. Okay. So is it good or bad? That is, you will understand after this discussion. So write down in your notebook, what is Sensex? नोटबुक में लिख लेने से क्या, बाद में कभी मन किया तो वापस पढ़ लेंगे एक बार. Human memory is short, therefore try to write it. Later on you can remember. So what is Sensex? It is an index, okay? Like any other index, it shows the change in the value over a period of time. That is called index. So Sensex is an index. Sensex is an index. And what is an index? Index is basically an indicator. An index is basically an indicator. पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव चैप्टर समझने के लिए ये सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा समझना जरूरी, क्योंकि वहाँ पर बार बार ये टर्म्स यूज होते हैं. एन इंडेक्स इज बेसिकली एन इंडिकेटर, दैट मीन्स इट इंडिकेट द चेंज इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आपने सुना होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि इस पीरियड में इन्फ्लेशन कितना था, प्राइस कितने से बढ़ी. इज इट राइट? तो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट यू कंपेयर द इंडेक्स ऑफ टू पीरियड, प्राइसेस ऑफ टू पीरियड, दैट गिव्स यू इन्फ्लेशन, which is measured by technically known as WPI और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो उसी तरह भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 के आसपास सिक्योरिटीज हैं लिस्टेड. तो हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर डे में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में स्टॉक मार्केट इन जनरल हैज इट गॉन अप और इट हैज गॉन डाउन. इन जनरल, इंडिविजुअली इट में गो अप और गो डाउन, बट इन जनरल व्हाट इज द ट्रेंड. To know the trend, we need to have some kind of index, some kind of value. By looking at that value, we will say yes, the value has gone up or gone down. Is it right? So it gives you a general idea about whether most of the stocks have gone up or most of the stocks have gone down. It gives you a general idea about whether most of the stocks have gone up or most of the stocks have gone down. Is it right? Whether most of the stocks have gone up or most of the stocks have gone down. Full stop. Wait. Suppose सेंसेक्स बढ़ गया 100 पॉइंट से, मान लो कल और आज के बीच 100 पॉइंट से सेंसेक्स बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि इन जनरल द शेयर प्राइसेस हैव गॉन अप. दैट डज नॉट मीन ऑल शेयर प्राइसेस हैव गॉन अप. इट इज पॉसिबल सम शेयर प्राइसेस में हैव गॉन डाउन ऑल्सो, बट ओवरऑल द ट्रेंड वॉज इंक्रीजिंग ट्रेंड. ओके, नाउ हाउ इज सेंसेक्स कैलकुलेटेड? राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इन कैपिटल लेटर, सेंसेक्स कैलकुलेशन. इट्स वेरी इजी. हो सकता है आपको पता भी हो, यू मे नो इट. इफ यू डोंट नो, वेरी गुड. सेंसेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ द मेजर कंपनीज ऑफ द BSE. Sensex is an indicator of all the prices of the major companies of the BSE.
underline major companies of BSE. It doesn't consider all 5,000 share. It only consider major companies of BSE. What is BSE? Why Mumbai Stock Exchange not there? कुछ कुछ चीज़ें हमने अभी भी मेंटेन करके रखी है, ट्रेडिशन. ओके, थैंक्स टू द गवर्नमेंट दे हैव नॉट मेड इट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज because it has a brand value. Okay, so BSE still remained BSE, and it is based on 30 stocks. It is based on 30 stocks, 30. What is the logic of 30 stocks? Why 30 only? Why not 31 or 29? There is no answer to that question. But why in general 30? It is a representative index. So for representation purpose, we have taken 30 out of say 5,000. It's like a parliament, okay? How many people represent the population of the country? Around 545. We don't send every person in the parliament to make the law. Just imagine, everybody, there is a direct democracy. Everybody is given the right to draw the law. तो सभी पार्लियामेंट पहुंच गए, 120 करोड़ लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं. इमेजिन कीजिए कैसे चल रही होगी पार्लियामेंट. नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, 4, 5, 10 लाख लोग मिलके एक किसी को पकड़ के भेज देते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पीपल. ओके, तो सेंसेक्स के 30 स्टॉक क्या है, ये लीडर्स हैं, ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं. इनके बिहेवियर को देखकर हम पूरी मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं. इज इट राइट? जैसे हमारे लीडर्स के बिहेवियर को देखकर हम अपनी कंट्री के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्री कैसी है. These stocks have been picked up from various sectors. Okay, so these stocks will be taken from different sectors. Different sectors means ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो देखेंगे आप टाटा मोटर्स है वहाँ पे. बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पर SBI है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इन्फोसिस है, TCS है. ओके, फार्मा कंपनी है तो वहाँ पर आप देखेंगे रैनबैक्सी, सिप्ला, ऐसे 2-3 बड़ी कंपनीज हैं. तो कोशिश करते हैं कि हर एक सेक्टर से एक दो बड़ी कंपनीज को सिलेक्ट करें, सो दैट यू गेट टू नो द ट्रेंड ऑफ द एंटायर मार्केट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी बैंकिंग कंपनी के स्टॉक को भर दिया हमने उसमें. सो इन दैट केस इट विल ओनली रिप्रेजेंट द चेंज इन बैंकिंग कंपनी शेयर प्राइस. सेक्टर वाइज इंडेक्स भी होते हैं. इन इंडिया वी हैव sector wise index also, that will only help you to understand the movement in that particular sector. But Sensex is for stock market in general, so therefore it picks up the stock from different sectors. Next line, write down, these represent or they represent well established and financially sound companies. They represent well established and financially sound companies. So ये जो 30 कंपनीज है, इंडिया की 30 बेस्ट कंपनीज ऐसा आप बोल सकते हैं. Okay, they are the top 30 companies in the country. They represent well established and financially sound companies. The base value of Sensex is 100. The base value of Sensex is 100. तो सेंसेक्स की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? 100 से, और आज कहाँ पहुँच गया है? 28,000 some points. Okay, and the base year is 1978-79. Every index has a base year and a base value. A parallel example would be in your Income Tax Act. For calculating long term capital gain, the base year is 1/4/1981, the base date, and the base value is taken as 100, and then it has kept on increasing over a period of time. Is it right? तो सेंसेक्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? 100 से, और आज बढ़ते बढ़ते 28,000 पॉइंट चला गया. सो विच आर दिस 30 स्टॉक्स राइट नाउ? दिस कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो. इट्स नॉट दैट द शेयर्स विच वर देयर इन 1978-79, द सेम शेयर्स आर कंटिन्यूइंग इन द सेंसेक्स स्टिल टुडे. इज इट पॉसिबल? नो. सो
I will make a list of those 30 stocks which keeps on changing. So हो सकता है अभी आप क्लास के बाहर निकलें उसमें से एक आध कोई नहीं दिखे और एक आध कोई नई कंपनी दिख जाए, ऐसा हो सकता है, बिकॉज पीरियोडिकली दे रिवाइज दिस लिस्ट. किसी कंपनी की इंपॉर्टेंस कम हो गई उसको बाहर निकालो, किसी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई उसको अंदर ले लो, ठीक है. तो ये कमिटी जो सेंसेक्स के 30 शेयर्स डिसाइड करती है वो पीरियोडिकली उनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस शेयर को रखना है, किसको बाहर निकालना है. ओके, तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, बट रिसेंट डेटा सम मंथ्स बैक दिस इज द पोजीशन. एक तो है बजाज ऑटो लिमिटेड, नाम सुना आपने? क्या बनाती है? पल्सर और बहुत सारी बाइक्स बनाती है, हाई एंड बाइक्स भी बनाती है. भारती एयरटेल टेलीकॉम. भेल वो खाने वाला नहीं है. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. सिप्ला कोल इंडिया, वेरी गुड, इंडिया मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है. डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी फार्मा, दो तीन फार्मा कंपनी भी हैं. GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. हो गया, लिख लिए? आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिग कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी बट क्वाइट बिग. HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, अगेन अ वेरी बिग कंपनी जिसकी मैंने एक बार ऑडिट भी की थी ना. HDFC बैंक, HDFC बैंक ये है बैंक, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देन हीरो मोटो कॉर्प, हीरो मोटो कॉर्प, हिंडाल्को, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस बट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. HUL, this is a FMCG company, fast moving consumer goods company. Okay, then ICICI Bank, Infosys, जल्दी जल्दी लिखते रहना है. Infosys, ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील हो गया. लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, मारुति सुजुकी, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन. ओके, ये सब PSUs है बट काफ़ी बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी है. कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास है, कुछ पब्लिक में ट्रेडिंग होती है. Then Reliance Industries Limited, the biggest public private sector company. Okay. State Bank of India, Sterlite Industries. So आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर से हमने शेयर्स पिकअप किए और उन सेक्टर में जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. हो गया? नहीं, जब तक Z तक नहीं पहुंचेंगे कैसे खत्म होगा. सन फार्मा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं. टाटा स्टील, और एक गेस कीजिए. TCS, विप्रो. TCS is another biggest private sector company. Okay, then 30 हो गए, काउंट कर सकते हैं. ये जो लिस्ट मैंने भी आपको दी है, हो सकता है इसमें एक दो शेयर अभी नहीं दिखे आपको आज, शायद आज की डेट में, और एक दो नए दिख जाएं उसमें, तो बीच बीच में प्लस माइनस होते रहते हैं. अभी कैलकुलेशन कैसे करना है लिखिए. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको.
Methodology. Sensex is calculated using free float market capitalization methodology. Sensex is calculated using free float market capitalization methodology. Sensex is calculated using free float market capitalization methodology. So what is free float market capitalization methodology? It means the shares which are available for trading purpose. मैंने नीचे लिख दिया है. What is free float market capitalization? ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आता है. What is free float market capitalization? What is free float market capitalization? Anybody who knows? At present in India, the calculation is based on free float market capitalization. Suppose a company has 1 lakh share, 40,000 shares are with the promoters. Those shares are not available for trading purpose. The promoter is not going to offer his shares for trading purpose. Only 60,000 shares with the public is available for trading purpose. So those 60,000 share multiplied by the market price is called free float market capitalization. Free float, those shares which are available for trading purpose, उनकी market value. पहले ओरिजिनली टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करते थे. टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग नॉन प्रमोटर एंड प्रमोटर. नाउ वी यूज ओनली नॉन प्रमोटर ग्रुप. नाउ वी यूज ओनली नॉन प्रमोटर ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन. Write a note. Possible question for exam also. Free float market capitalization, write fast, is defined as that proportion of total shares issued by the company that are readily available for trading in the market. That are readily available for trading in the market. That are readily available for trading in the market. That are readily available for trading in the market. ओरिजिनली हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेते थे, लेकिन अभी वर्ल्ड ओवर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज हो रहा है. द इंडिया हैज ऑल्सो शिफ्टेड टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन नाउ. तो इससे कौन सी कंपनी पे इम्पैक्ट आता है? जैसे कंपनी लाइक विप्रो में कम से कम 70% एंड अबव शेयर्स आर हेल्ड बाय ओनली वन फैमिली. विच फैमिली? अजीम प्रेमजी. तो उनकी केस में क्या होता है, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है. ठीक है. और रिलायंस इंडस्ट्रीज अप्रॉक्सीमेटली 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय अंबानी एंड कंपनी एंड फैमिली. ओके. तो आपस में भाई भतीजे माँ बहन सब मिलके ये 40% शेयर सब आपस में ही उनके पास. ठीक है. उन्हें ट्रेड ट्रस्ट वगैरह सब खोल के आपस में इनके पास 50% है, ताकि कंट्रोल अपने पास रहे. कोई भी डिसीजन लेना हो तो आराम से ले सकते हैं. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया, जो सिर्फ रिमेनिंग शेयर उसके बेसिस पे हम लोग सेंसेक्स कैलकुलेशन करते हैं. सो नीचे एक और नोट लिख दिया मैंने, इट एक्सक्लूड्स प्रमोटर्स होल्डिंग. प्रमोटर होल्डिंग नहीं करना. कैलकुलेशन करते समय आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रमोटर्स के होल्डिंग को हटाना है उसमें से. ठीक है. Now I will give you one example also. Write example. Continue. Suppose company has 1,000 shares in total. Company has 1,000 shares in total. Out of this 200 are held by promoters. Out of this 200 are held by promoters. So what is non-promoter shareholding? What is free float shares?
So only 800 shares are available for trading to the general public. So only 800 shares are available for trading to the general public. Understood? So in your calculation you will take 800 shares, not 1000. Not 1000. You will take 800 shares for calculating free float market capitalization. These 800 shares are so called free floating shares. These 800 shares are so called free floating shares. Is it right? Now write down. Suppose the price of each share is rupees 120. Suppose the price of each share is rupees 120. Suppose the price of each share is rupees 120. Suppose the price of each share is rupees 120. Now write down next line, total market capitalization. Total market capitalization will be equal to 1000 share into 120. 1000 share into 120 is how much? Rupees 1,20,000. That we will not use in calculation. Henceforth, it was used earlier, originally. Now we use free float market capitalization for calculation purpose. That is 800 into 120 is 96,000. So in your calculation 96,000 will be used. Okay, सबने लिख लिया यहाँ तक? अब देखिए इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है. हम यहाँ सिर्फ दो स्टॉक का एग्जाम्पल लेंगे, 2 हो या फिर 30 हो, कैलकुलेशन वही रहेगा. ठीक है, 2 ले रहे क्योंकि हमारा काम जल्दी हो जाएगा. सारे एग्जाम्पल में सारे नंबर्स जो है जस्ट अज्यूम्ड नंबर्स हैं. Suppose index consists of only 2 stocks. For understanding purpose, 2 हो या 30 हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. स्टॉक है स्टॉक भी, कैलकुलेशन का प्रोसीजर वही रहेगा. कंपनी एज डिटेल्स, कंपनी एज डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000, promoters holding 200, promoters holding 200, so public holding 800, public holding 800. ये पहला वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया मैंने. करंट मार्केट प्राइस इज 120, करंट मार्केट प्राइस इज 120, करंट मार्केट प्राइस इज 120. टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, total market capitalization, total will be 1,20,000. Free float market capitalization 96,000. Free float market capitalization 96,000. Right. अब कंपनी बी का भी डिटेल लिखेंगे. अगर थोड़ी सी जगह राइट साइड में तो इसकी इधर ही लिख सकते हो आप. कंपनी बी डिटेल्स हैं या नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग से लिखो. है तो उसके राइट साइड में ही लिख दो. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2000. यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग 1000 है, प्रोमोटर होल्डिंग 1000, पब्लिक होल्डिंग 1000. बैलेंसिंग फिगर ये आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में. आपको प्रमोटर होल्डिंग दी जाएगी, आपको पब्लिक होल्डिंग कैलकुलेट करना है. करंट मार्केट प्राइस 200, करंट मार्केट प्राइस 200, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख. टोटल का काम नहीं है, मैंने जस्ट लिख दिया है. यू आर कंसर्न विथ ओनली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन नाउ. सो व्हाट विल बी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विल बी 2 लाख. इज इट राइट? तो अगर ऐसे इंडिया में 30 कंपनीज है सेंसेक्स में, तो क्या करते हैं 30 कंपनीज के लिए ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं. ठीक है,
as of today, next line, total market capitalization of A and B is 5,20,000, but we'll not take that figure. We'll take this figure, free float market capitalization of A and B. What was free float market capitalization? Anybody? What was free float market capitalization? Is it 2,96,000? Yes, 2,96,000. पहले आप समझो, तो हमने क्या किया, आज टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर लिया 2,96,000. जैसे 2 का किया वैसे 30 का करते हैं, 50 का करते हैं. इज इट राइट? तो बॉम्बे सेंसेक्स का जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो कैलकुलेट होता है, उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ है वहाँ पे. हर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट शेयर्स ऑलरेडी वहाँ पे डेटा में फीडेड है. सॉफ्टवेयर क्या करता है, हर कुछ 8 या 10 सेकेंड के बाद जो मार्केट प्राइस है उसको पिकअप करता है और उसको वहाँ पर वो पुट करता है, तो वो कैलकुलेशन होता है. अपने आप ही सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है कि वो हर कुछ सेकेंड्स के बाद, आई थिंक 8 सेकेंड्स के बाद, आप देखेंगे हर 8 सेकेंड के बाद वो नंबर चेंज होता है वो, ठीक है. हर 8 या 10 सेकेंड के बाद वो अपने आप ही सारा कैलकुलेशन करके बताता है इतना अभी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है. इंडिया का ये जो सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल जो यूज़ करते हैं सेंसेक्स के लिए, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द बेस्ट. नाउ राइट, द ईयर 1978-79 is considered the base year. The year 1978-79 is considered the base year of the index with a value set to 100. With a value set to 100. With a value set to 100. Okay. बेस वैल्यू कितनी ली हमने, 100. तो उस दिन का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखना होगा कितना था. यस और नो? अरे कहाँ चला गया, कोई बात नहीं. सपोज एट दैट टाइम द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक वाज से 60,000. सपोज एट दैट टाइम द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक वाज से 60,000. अब देखिए, बिल्कुल सिंपल 4th स्टैंडर्ड अरिथमेटिक यूज करना है आपको. जब मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 है तो उसकी वैल्यू हमने दी उसको 100, ठीक है. अब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,96,000 है तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60,000 अगर कैपिटलाइजेशन है, 100 वैल्यू है, 2,96,000 तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 400. Right. So this is how Sensex is calculated. Now it is time for some basic math. Now it is time for some basic math. Time, market capitalization, index value. 1978-79 market capitalization 60,000, index value is 100. So today market capitalization is 2,96,000. So what should be the index value? Question mark. तो इज इट नॉट अ स्कूल लेवल बेसिक मैथ्स? ऐसे ही होता है सेंसेक्स की कैलकुलेशन. उन्होंने क्या किया, एक 1978-79 का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स लिया है और हर दिन, हर 8 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही कैलकुलेट करता है आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कैलकुलेट हो जाता है और सामने आपके टीवी की स्क्रीन पे वो दिखता रहता है. इज इट राइट? तो ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन घटेगा इंडेक्स की वैल्यू घटेगी. सो देयरफॉर राइट डाउन टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू यू, द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स टुडे इज इक्वल टू मैथमेटिक्स 2,96,000 into 100, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, डिवाइड बाय 60,000, सो 493.33. अब इतने सालों में क्या हो गया है कि इंडेक्स की आज की वैल्यू कई लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गई है. इसलिए इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 28,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया, बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड.
ओके, रिलायंस की शेयर प्राइस जब 10 रुपये थी, आज 1000 रुपये है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपके इंडेक्स पे दिखेगा। तो इंडेक्स कब बढ़ेगा? जब आज मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ेगा? जब आज शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो शेयर प्राइस बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने से आपका इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो जिस दिन बीएससी सेंसेक्स बढ़ रहा है, मतलब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है उस दिन। इस 30 शेयर का, 30 शेयर्स का उस दिन टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कब बढ़ेगा? जब शेयर प्राइस इन जनरल बढ़ेगी। इज इट राइट? और उसी तरह अगर कभी आपको लगता है सेंसेक्स कम हो गया, इसका मतलब उस दिन की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुई है। वो कब कम होगी? जब शेयर की प्राइस घटेगी तब। इज इट राइट? दिस इज हाउ सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड। आप बोलेंगे ये तो खुदा पहाड़ निकली चोइया, हम लोग कितनी उम्मीद के साथ आज आए थे कि कुछ नया अच्छा बढ़िया सीखने मिलेगा। ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें पता ही था। दिस फैक्टर 100/60,000 इज कॉल्ड इंडेक्स डिवाइजर। यानी अब आपको क्या करना है, 100/60,000 कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीडेड है। एग्जाम्पल के लिए एक्चुअल 60,000 नहीं है, वो कुछ और नंबर होगा उस समय का। अब आपको सिर्फ ये नंबर डालना है सॉफ्टवेयर में, आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपको अपने आप इंडेक्स मिल जाएगा। तो 100/60,000 कितना हुआ? कैलकुलेटर पे जरा देखो। हाँ, उसको मेमोरी प्लस में डाल दो। अब मान लो इंडेक्स, अब मान लो कैपिटलाइजेशन अगर 5 लाख है, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उस नंबर को रिकॉल करके इंटू 5 लाख कर दो, 833 आ गया। इज इट राइट? तो दिस वे इंडेक्स इज कैलकुलेट। उन्होंने क्या किया कि इंडेक्स डिवाइजर डाल के रखा हुआ है। एवरी 8 or 10 सेकेंड दी सॉफ्टवेयर कैप्चर्स दी मार्केट प्राइस, ओके, एंड देन डज दिस कैलकुलेशन एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन एवरी डे। देखा आपने कभी टेलीविजन, कोई न्यूज़ सुबह 9 से लेकर 3:30 बजे तक वो इंडेक्स बार बार दिखाते रहते हैं, और हर थोड़ी देर के बाद वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद शेयर प्राइस चेंज होगी। किसी न किसी एक शेयर की प्राइस भी चेंज हो गई इस 30 में से, तो इंडेक्स चेंज होगा। इज इट राइट? सो फॉर्मूला क्या है इंडेक्स निकालने का, एक बार वापस लिख लेंगे। इंडेक्स फॉर्मूला बेस वैल्यू इनटू करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेस वैल्यू इनटू करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आपने बहुत अच्छी बात सीखी। अब आप अपने घर पे जाके ना सबको सिखाना कैसे ये इंडेक्स कैलकुलेट होता है। इतने दिन से आपके पापा सिर्फ देख रहे थे नंबर रोज रोज, आप उनको बताना ऐसे होता है ये कैलकुलेशन। बहुत सारे लोग देखते लेकिन कैलकुलेशन नहीं पता रहता है कैसे होता है ये, ठीक है। तो इस तरह सेंसेक्स कैलकुलेट होता है। अब कुछ जनरल ज्ञान, ट्रेंड्स इन सेंसेक्स। सेंसेक्स keeps on moving up and down because share prices keep moving up and down. It started with 100 and in 2008 it reached 20,000 and now in 2000 कौन सा ईयर चल रहा है, 2015 I forgot। कल मेरे 2 चेक बाउंस भी हो गए थे, उसमें 2018 लिख दिया था मैंने। बैंक बोला अरे क्या कर रहे हो सर। Anyway, it shows that person has gone what I should say insane। जब समय का ध्यान ही नहीं रहता, अभी कौन से साल में वही भूल जाता है इंसान। अब वापस देखिए, on 8 जनवरी it was 28,000। अब ये डेटा थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन कभी कभी सेंसेक्स एक ही दिन में 2000 पॉइंट भी जंप मार सकता है जब शेयर प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएं, ओके। एंड द स्काई रॉकेटिंग सेंसेक्स सॉ द बिगेस्ट फॉल इन द हिस्ट्री, शेडिंग 2062 पॉइंट्स इंट्राडे। एक दिन ऐसा भी आया कि एक ही दिन में 2000 पॉइंट्स कम भी हो गया। इलेक्शन के बाद जनरली ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर कोई हंग पार्लियामेंट आ गई, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो सकता है। स्टॉक सेंसेक्स क्रैश हुआ मतलब जो मेजर कंपनीज के शेयर प्राइसेस हैं वो घट गए हैं, ओके। सो दिस इज ट्रेंड इन सेंसेक्स।
नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो जो इसके पहले था ये कुछ सेंसेक्स की हिस्ट्री थी, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। अभी आप देखिए यूज ऑफ मार्केट इंडेक्स, राइट डाउन थियरी क्वेश्चन के लिए, यूज ऑफ सेंसेक्स, यूज ऑफ निफ्टी, यूज ऑफ एनी सच मार्केट इंडेक्स। क्यों कैलकुलेट करते हैं हम, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि रोज ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन पे रहता है? इज इट राइट? मंडे से फ्राइडे कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा न्यूज़पेपर में कि आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में न्यूज नहीं हो, है कि नहीं? सारे न्यूज चैनल सुबह 9 से 3:30 तक सेंसेक्स निफ्टी दिखाते रहते हैं। सो द पर्पज इज, इट इज अ बैरोमीटर फॉर मार्केट बिहेवियर। फर्स्ट बेनिफिट इज इट शोज यू द मार्केट बिहेवियर, लिखते रहना है, ठीक है? इट इज अ बैरोमीटर फॉर मार्केट बिहेवियर, दैट इज वेदर द मार्केट इन जनरल इज गोइंग अप और गोइंग डाउन, ओके? Then second is, it's a benchmark portfolio performance. As a benchmark portfolio performance. As a benchmark portfolio performance. During a year, for example, stock market has increased by 10%. Portfolio has increased by 12%. So portfolio has performed better than the Sensex. But if Sensex has increased by 10% and portfolio return is only 8%, portfolio has underperformed. Portfolio has underperformed. तो हम लोग बहुत सारे फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सेंसेक्स यूज कर सकते हैं कि अगर सेंसेक्स 10% बढ़ा तो आप तो पोर्टफोलियो मैनेजर है, आपको कितना रिटर्न जनरेट करना चाहिए? कम से कम 10 से ज़्यादा करना चाहिए ना तो फिर मैं सेंसेक्स के 30 शेयर में इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे 10% रिटर्न ऑन एन एवरेज मिल सकता है। नेक्स्ट इज एज एन अंडरलाइंग इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इज यूज्ड एज एन अंडरलाइन, ओके? विल डिस्कस लेटर व्हाट इज अंडरलाइंग in derivative instrument like index future, index option, index future, index option. So this is very popular in India. Nifty future, Nifty future is one of the most popularly traded derivatives in India. Is it right? What is Nifty future? After a few minutes. Next is in passive fund management by index fund. In passive fund management by index funds. Index fund underline, this you will study in mutual fund chapter. In passive fund management by index funds. Now what is an index fund? It is a type of mutual fund scheme. It is a type of mutual fund scheme. अभी लिखना नहीं, उस चैप्टर में लिखा हुआ है. It is a type of mutual fund scheme which invest in the shares of a particular index. Which invest in the shares of a particular index. For example, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी हो सकती है जो सिर्फ 30 शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। कौन सी 30 शेयर्स में? जिसके नाम अभी आपने लिखा, तो दैट दे कैन कॉल इट BSE सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यानी हमारा काम क्या है? हम सिर्फ ये सेंसेक्स के 30 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर डायरेक्टली 30 शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपने से, वो क्या करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, फिर ये म्यूचुअल फंड उन 30 शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगी, ओके? तो कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी भी होती है जो आपको ये ऑप्शन देती है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के शेयर में इन्वेस्ट करें, उनको बोलते हैं इंडेक्स फंड, ओके? नाउ दैट वाज अबाउट BSE सेंसेक्स. देयर इज अनदर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बिगर, बेटर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो दोनों में काफ़ी कॉम्पिटिशन है BSE NSE में. दीज आर द टू national level stock exchanges. So price index of securities traded on national stock exchange. Which started first, BSE or NSE? BSE. गुरु पिक्चर में अभिषेक बच्चन को कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में दिखाया गया है? BSE में या NSE में? हाँ, BSE में. NSE के लिए कोई फिजिकल स्पेस नहीं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है. BSE के लिए पहले ट्रेडिंग होती थी BSE के 23rd फ्लोर में, उस बिल्डिंग के जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था. वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है, सारे ब्रोकर वहाँ पे जमा होंगे. दे विल कोट देयर प्राइसेस,
दे विल से बाय बाय बाय, सेल सेल सेल, ओके। फिर जब दो लोग आपस में डिसाइड करेंगे तो एक पेज पे लिख लेते तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ओके, नो फिजिकल मीटिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। So Nifty is a late starter because started late. So right, the price index of securities traded on National Stock Exchange is reflected through NSE 50 index. Is reflected through NSE 50 index. The price index of securities traded on National Stock Exchange is reflected through NSE 50 index, popularly known as Nifty. Popularly known as Nifty. So easy to remember. How many shares are there in calculation of Nifty? 50. Nifty 50. Okay. N stands for National Stock Exchange, and last 4 digits of 50 they have used. They have combined and it became Nifty. Okay, that was only my guesswork. Now, it comprises 50 stock. N plus 50 is Nifty. तो यहाँ 50 है, वहाँ 30 है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। दे वांट टू टेक 50. इज इट राइट? कुछ कंट्री की पार्लियामेंट में 545 लोग बैठते हैं, कहीं कहीं 200 में ही काम चल जाता है। क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है। तो ये नंबर्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग इंडेक्स के लिए अलग अलग नंबर्स यूज करते हैं। निफ्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अप्रैल 22, 1996 with the base year of November 3, 1995. With the base year of November 3, 1995. तो निफ्टी को हमने कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट किया है? 22 अप्रैल से, और उसके लिए बेस लिया हमने नवंबर 3, 1995, और बीएससी 1978, 79 ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो निफ्टी को हमने क्या किया, बाद में स्टार्ट किया, तो हमने इसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया। इसको हमने बोला तुम 1000 से स्टार्ट हो जाओ, तुम लेट आए हो ना, तो तुम थोड़ा रेस में थोड़ा आगे पहले खड़ा हो जाओ। इसको 1000 से स्टार्ट किया हमने। अभी आप देखेंगे अभी भी निफ्टी और सेंसेक्स में कौन बहुत कम रहता है? निफ्टी। क्यों? बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब नहीं कि निफ्टी बेकार है, दोनों कंपैरेबल नहीं है। निफ्टी के पॉइंट्स और बीएससी के पॉइंट्स कंपैरेबल नहीं है, उनको कंपेयर करना ही गलत है। लेकिन कभी कोई आपसे पूछे कि निफ्टी क्यों कम दिखता है और सेंसेक्स क्यों ज्यादा दिखता है? बिकॉज निफ्टी स्टार्टेड क्वाइट लेट। ओके, तो इसकी जर्नी काफी लेट स्टार्ट हुई है। फिर भी हमने इसको 1000 से स्टार्ट किया ताकि बहुत गैप ना दिखे। अगर हमने इसको 100 से स्टार्ट किया होता तभी निफ्टी कुछ 800-900 दिखता और सेंसेक्स दिखता 28,000, तो बहुत ज्यादा गैप लगता। तो इन दोनों की वैल्यू से आप बिल्कुल ये मत सोचना कि बीएससी अच्छा है और एनएससी बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। What are the desirable attributes of an index? Desirable attributes of an index means index calculation के लिए, index construct करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो कमिटी जो इंडेक्स डिसाइड करती है वो क्या देखती है? 1, it should capture the behavior of a large variety of different portfolios in the market. It should capture the behavior of a large variety of different portfolios in the market. अंडरस्टूड? वो मैंने स्टार्ट में बोला था, इट शुड बी अ डाइवर्स इंडेक्स। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक, एक ही टाइप के सारे स्टॉक लेकर आपने वहां पे कैलकुलेट कर लिया। तो जो 30 शेयर्स मैंने आपको लिस्ट लिखाई थी, आप घर जाके उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इट शुड, द स्टॉक्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स शुड बी हाईली लिक्विड। द स्टॉक्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स शुड बी हाईली लिक्विड।
The stocks included in the index should be highly liquid. It means high trading frequency. Liquid का मतलब high trading frequency. इसकी ट्रेडिंग बहुत होनी चाहिए, यानी कि जब भी कोई आप ऑर्डर प्लेस करो आप देखेंगे तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने करंट मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाला तो ब्रोकर को फोन करके बोलो कि मुझे 100 रिलायंस का शेयर चाहिए आज जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, आप बोलोगे और उधर विद इन सेकेंड्स वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतने लिक्विड होते हैं। ऑब्वियसली आप कोई अनरीजनेबल अमाउंट बोलोगे तो नहीं होगा। आप बोलोगे मेरे पास 100 शेयर पड़े रिलायंस के, इसको 2500 में बेच दो, वो 2500 का उधर वो कोड डाल देगा, दिखता रहेगा थोड़ी देर तक, लेकिन उसके लिए कोई बायर भी तो चाहिए ना अपोजिट एंड पे, तो शायद नहीं बिकेगा। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे आप जब भी ऑर्डर डालोगे आपका ऑर्डर विद इन सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट इज लिक्विडिटी। ओके, जो 30 शेयर्स है ना, कभी भी ट्राई करना। अभी आप लोग घर पे भी शेयर परचेज कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट अगर है तो, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो करते हैं तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने करंट मार्केट प्राइस पे लिया तो, इसलिए इनको लिक्विड कहा जाता है। एंड थर्ड इज इट शुड बी प्रोफेशनली मैनेज्ड, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इंडेक्स बनाया फिर भूल गए। 1978-79 के शेयर अभी भी दिख रहे हैं इंडेक्स में, अब वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर पीरियोडिकली, आई थिंक आफ्टर से 3 months or something, the committee will come together, review the stocks again, they may add, they may delete some stock from the index। यानी उसको अगले पीरियड के लिए उसको कंसिडर नहीं करना है। जैसे सत्यम पहले शेयर था, इंक्लूडेड था इंडेक्स में, फिर बाद में सत्यम को निकाल दिया। जी टेलीफिल्म्स वाज देयर इन द इंडेक्स अर्लियर, अब उसको निकाल दिया। लेकिन एक कन्वेंशन हमने मेंटेन किया है बीएसई सेंसेक्स में कि 30 होना चाहिए, तो कोई आएगा तो कोई जाएगा। ओके, उसी तरह निफ्टी में हमने कन्वेंशन किया है 50 का, तो 50 मेंटेन करना है। अगर किसी नए को ऐड करना है तो किसी पुराने को जगह उसके लिए बनानी पड़ेगी फिर, इज इट राइट। तो जिस शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम हो जाती है उसको अगली राउंड में निकाल देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडाइसेस इन द वर्ल्ड, बस जिनको लिखना है लिख सकते हैं, जनरल ज्ञान। ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं ये है अवार्ड विनिंग प्रेजेंटेशन। ओके, इसके लिए मुझे इंस्टीट्यूट ने 750 रुपए का अवार्ड दिया था। Name of the index, country, number of stocks, base year, base value। तो इंडिया में 2 इंडेक्स पॉपुलर है, S&P, CNX, निफ्टी। पॉपुलरली कॉल्ड निफ्टी, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, दिस CNX आई डोंट नो, मैंने बहुत मुश्किल से याद किया था, वापस भूल गया। हाँ जी, नहीं, मैं तो पास हो चुका हूँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। जब तक मुझे नंबर समझ में आ रहे तब तक मैं खुश हूँ, ठीक है। आपको पास होना है। ये व्हाट इज NSEIL, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। It has 50, base year 95, base value 1000, Sensex 30. This represent Bombay Stock Exchange India. It has 30 stocks, base year 1978-79, base value 100. In USA there are 2 stock exchanges which are very popular. One is Nasdaq and एक नीचे Dow Jones. So Nasdaq 100 is Nasdaq USA. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डीलर्स एक्टिव कोटेशन। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट उसका एक फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डीलर्स एक्टिव कोटेशंस। ओके, बेसिकली टेक्नो स्टॉक के लिए यहाँ पर मोस्टली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज लिस्टेड है, जैसे इंडिया की इन्फोसिस भी लिस्टेड है यहाँ पे, विप्रो लिस्टेड है, सत्यम लिस्टेड है, थी
शायद एप्पल यहाँ पे लिस्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट लिस्टेड है इसमें, तो इनकी बेस वैल्यू 125 है। FTSE फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, FT फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज स्टॉक एक्सचेंज, ये यूके की सबसे पॉपुलर इंडेक्स है FTSE। इसमें 100 स्टॉक है, 1984,000। वन ऑफ द वेरी फेमस indexes or indices is Hang Seng, Hong Kong। Hong Kong is a very big financial market, okay? छोटी सी कंट्री है लेकिन it's a financial hub। 33 stocks, 1964, 100। One of the most famous indices in USA and in the world is Dow Jones, okay? After that famous Mr. Charles Dow, okay, who gave you one theory also। USA 30 stocks, 1928 से चल रही है इंडेक्स। And one of the famous indices in Japan is Nikkei 225। Tokyo, number of stocks 225। बस हो गया। And 1949। This presentation is over।